Hello, students, how are you? I hope you all are doing very well. Whatever videos we are sending you, you are understanding and you are getting everything. So, with the continuation of same, students, Google Classroom में ही आपको continuously you have to be in touch with the way of chatting. Whatever questions we are asking in the Google app, Google Classroom, so please answer in the same only. Don't answer by sending your mails because mails are getting too much. Chatting is something else or mailing is something else. So don't answer through mails, answer me through your through the chatting in Google Classroom. Clear, students? Whatever we are sending you. Yesterday few tried but few could not. And those who have not joined yet, please join your Google Classroom so that the discussion on the video, whatever I have given you, or the questions which I am going to ask you, that will be discussed in that only. I hope you are getting. With this hope, let's continue today's session. Page number 34 and this third para we are going to start. The last para of this, we are going to start this. It's gonna be a big paragraph. So आज का session हम इस paragraph के साथ ही finish करेंगे. That's very important paragraph. This para is the first para in which, or the first event in the story in which Paddler came to know that now finally he has been caught in the rat trap himself, with the same philosophy of which he used to think, and he used to make fun of others, like how others are revolving around rat trap, how they have been caught inside, but I can't be because I have no one with me to be caught in. So that's what all he used to think, and now he himself has been caught. That is the first time in the story he realized that he himself has caught in this rat trap. So let's have a look, students. As he walked along, get ready with your textbook and pencil. As he walked along with the money in his pocket. Which money? Remember, 30 kroners. The same 30 kroners which he has stolen, जो उसने चुराए थे लेदर पाउच से, क्रॉफ्टर के घर से, विंडो के पास से. वही 30 kroners उसके पॉकेट में थे जो वो लेके चलता है. He felt quite pleased with his smartness and he was getting very happy. जैसे होता है ना, कई लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कुछ काम करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है कि कितनी स्मार्टली उसने वो 30 kroners चुराए और अब उसके ऐश हो गए, मजे करता रहेगा वो. He realized, but later on, धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है, of course, बिल्कुल, that at first he dared not continue on the public highway. His first decision is he is not going to the public highway. He will not follow the public highway. Reason behind, but must turn off the road into the woods. Woods means forest. I mean, instead of following the public highway to walk on, because he can be easily caught, or if somebody will take his money out, so he will be sent to the jail. That how can you have that much amount, because you don't look like so to keep such an amount. So he decided to turn off and to take his way to the woods. Woods means to find his way into the forest. जंगल के अंदर से, फॉरेस्ट के अंदर से अपना रास्ता ढूंढे. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, कुछ स्टार्टिंग के घंटों में, फर्स्ट आवर, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. लाइक एट स्टार्ट तो वो अपना वे ढूंढ रहा था इन द फॉरेस्ट, तो तब तो उसे कोई डिफिकल्टी फील नहीं हुई. लेटर इन द डे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, इट बिकेम वर्स. चीज़ें बहुत बेकार होती गई उसके लिए. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल कैसा था, बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो आके फंस गया था, या जिस जंगल के थ्रू उसने रास्ता सोचा वहां से बाहर निकलने का, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा फॉरेस्ट था. बहुत ज़्यादा थिक था, कर्व्स थे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी था, बहुत ज़्यादा डार्क फॉरेस्ट था. सो ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट. क्लियर? ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. कोशिश की उसने टू बी श्योर कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक. लेकिन ऐसा लग रहा था उसे रास्ते अपने आप में मुड़ जा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं जो वेज है वो ट्विस्ट होके वापस उसकी तरफ मुड़ के, मतलब जहाँ से वो चला था रास्ते वहीं से मुड़ के वापस उसी जगह, उसी ट्रैक पे वापस आ जा रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा था वो एक ही जगह में गोल गोल घूम रहा है बहुत देर से, एट द सेम प्लेस. ठीक है ना? फोर्थ, confusing forest which he had gotten into, he tried to be sure to walk in a definite direction. और फिर उसे ऐसा लगा कि श्योर वो एक ऐसे डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और बहुत स्ट्रेंजली वो पाथ वापस वहीं पे आके आ जा रहे हैं.
He walked and walked without coming to the end of the wood. He was keep on walking, और उसे ऐसा लग रहा था कि without coming to the end, एंड नहीं मिल रहा उसे उस फॉरेस्ट का, एंड ना मिलके अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसे ऐसा लग रहा था. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पाथ, घूम फिर के और राउंड एंड राउंड एंड राउंड विदाउट सर्चिंग एनी एंड, बिना एंड खोजे या बिना एंड मिले वो उसी प्लेस पे राउंड एंड राउंड बार बार वहीं चक्कर काट रहा है. ऐसा उसे फील हुआ जब वो थक गया कंटिन्यूसली, जब वो उसी वे में आगे बढ़ता रहा. तो ही जस्ट फेड अप and finally he realized that he is moving in the same path again and again, and the path are twisting and taking him back to the same. वापस घूम फिर के उसको वो जगह वापस उसी पाथ पे लेके जा रही है. he is not getting the way out of that. Then he had let himself be fooled by a bait. और फिर उसे यहाँ पे देखे, here is the realization student, यहाँ पे उसे realize होता है कि himself be fooled, वो खुद यहाँ पे बेवकूफ़ बना है, by a bait again the attractive थिंग. और पैडलर के लिए वो क्या था, वो 30 क्रोनर्स जो उस क्रॉफ्टर ने रखे थे वो बेट. तो वो हैड बीन कॉट और वो फंस चुका है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, और ये सारा का सारा जंगल अपने ट्रंक्स के साथ, ट्रंक्स के बड़े बड़े पेड़ों के साथ, उनके बड़े बड़े तनों के साथ, ब्रांचेस टहनियों के साथ. इट्स थिकेस्ट मतलब द थिकेस्ट पार्ट, बिल्कुल स्ट्रेच्ड पार्ट जो था फॉरेस्ट का, एंड फॉलन लॉग्स, और आसपास जो लकड़ियां पड़ी हुई थी, क्लोज्ड इन अपॉन, वो एक रेड ट्रैप की तरह सारा फॉरेस्ट उसके ऊपर बंद हो गया है. हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन. इम्पेनेट्रेबल मीन जहां से वो वापस नहीं निकल सकता या जिसके रीचेस बाहर नहीं है. अनेबल टू गो आउट एनीवेयर टू एनीवेयर, वो ऐसे एक प्रिजन में फंस कर रह गया है फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. और ये फाइनली उसको समझ आ गया था यहाँ से वो बाहर कभी भी नहीं निकल सकता. सो इन दिस वे ही हैज़ बीन कॉट, और कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा है बाहर निकलने का. और ये स्टूडेंट ये चैप्टर में पहली बार है जब रेड ट्रैप को खुद ये महसूस होता है कि मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ, और यहाँ पे रेड ट्रैप क्या है, उसके लिए ट्रैप क्या है, या रेड ट्रैप का वर्क कौन कर रहा है, ये सारा फॉरेस्ट जिसके अंदर वो फंस कर रह गया है. सो आई होप आपको समझ आया होगा. ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा. That's all for today. Stay safe, stay home. Bye bye.